Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to discuss about two group CX disconnection 1, 2 and 1, 3 DIX. I am Dr. Amreen Ghani from University of Education, Vihari campus. These are the key points of two group CX disconnection. Which include 1,2 difunctionalized compounds and 1,3 difunctionalized compounds. Students, in this lecture, we will consider these structures or these molecules in which the two carbon atoms having two functional groups at carbon number 1 and carbon number 2, or carbon number 1 and carbon number 3 will be used to study the disconnection approach. Two group CX disconnection. In organic synthesis or retrosynthesis, one functional group is used, or it will help to disconnect another functional group elsewhere in the molecule, either in position 1, position 2 or position 3. Such disconnections are known as two-group disconnections. In this, carbon atom having a different functional groups will be used. Disconnection is a mental approach, as we know. In organic synthesis or retroanalysis, we have to do the retro keeping in mind the possible mechanistic routes for the synthesis of that target molecule from the simplest reagents. So, to convert target molecule to simplest reagents so that it can be synthesized again, while in two-group disconnection, a group is disconnected in the presence of other functional group, while one functional group is required to disconnect other. Let us understand by this approach by different examples. This is the first example of 1,2-CX difunctionalized compound. First of all, we will discuss its disconnection of this molecule. As we can see, a benzene ring having a nitro group and a methyl group at its meta position, while an ether linkage at its ortho position. Along with the, as you can see, the two carbon atoms are numbered as 1 and carbon number 2. At carbon number 1 we have the carbonyl group, that is a terminal functional group, while at carbon number 2 the carbon number 2 is linked with an oxygen atom through an ether linkage. So in order to do the retro analysis, we need to disconnect any functional group with respect to the other. As we know that we can't disconnect the terminal functional group, so we will disconnect the CO linkage of carbon number 2. Here two CO linkages are available. The question is, which one carbon oxygen bond will be disconnected? Let's see, if we disconnect this carbon number 2 and oxygen bond, then what will be the synthones? In order to write the disconnection, we will write 1,2-dix over the arrow. Here the synthones we get are the oxygen atom with the negative charge on it, while the other synthone has the positive charge on the carbon atom as carbocation. These two synthones are formed. Now think about the possible starting materials. These could be like this. If we attach a bromine group, a good
halogen or good living group, so that which can react during the synthesis. Then we will have the synthone like alpha bromo ketone, while the other synthone which has the negative charge on the oxygen, it will be converted into the starting material like this. It will have a hydrogen atom. Now come towards the synthesis. This nitrophenol, first of all, in first step, the aldehydic synthone will be treated with the bromine in order to obtain the bromoaldehyde, so that this bromine will react with the phenol, and during condensation this bromine will be eliminated as HBr, and an ether linkage will be produced like this. In the presence of a base will abstract a proton from the phenol, and bromine will be removed from the other starting material, and we will get the ether linkage again. So this was the possible mechanistic route or the possible reaction for the synthesis of this molecule. अब ये देखिए, इसके अंदर ये सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें भी दो कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 is connected through ether linkage to the carbon which is labeled as A. अब इसमें देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 कार्बन एटम्स के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हों और हमने उन्हें डिस्कनेक्ट करना है, तो ये हम कहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे? क्या हम कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे या ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट करेंगे? ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 के साथ जो ईथर वाला ऑक्सीजन है आया, उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि हमने टर्मिनल जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, हमने बीच के फंक्शनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट करना है। इसके लिए अब हम देखेंगे कि बीच में सेंटर में जो ईथर लिंकेज है उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसको मैंने मेंशन किया है थ्रू A एंड B। इनके A पोजीशन जो A कार्बन है वहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा या कि पोजीशन B से। तो आइए देखते हैं कि अगर A पाथवे हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से सिंथोन्स बनते हैं। बेटा हम एरो के ऊपर लिखेंगे CO ईथर, चूँकि हम ईथर लिंकेज की डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, और एरो के नीचे लिखेंगे 1,2 डाईएक्स। तो जब हम पाथवे A की बात करते हैं बेटा, तो A पाथवे में हमारे पास जो ऑक्सीजन और कार्बन का लिंकेज है वो ब्रेक होने के बाद जो सिंथोन्स आ रहे हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये कार्बोकेटाइन बन गया है, और दूसरा जो सिंथोन है उस तरफ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब आप ये देखिए कि इसके जब रिस्पेक्टिव जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं जब वो बनेंगे तो जो कार्बन है उसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जैसे क्लोरीन अटैच होगा, और जो O है उसके साथ कोई पॉजिटिव जैसे कोई हाइड्रोजन अटैच हो। तो बेटे A पाथवे से हमें एक ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल मिल रहा है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप OH जो हैं वो टर्मिनल कार्बन्स पे लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट जब मैं इसकी सिंथेसिस करूँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये क्लोरीन कौन से वाले OH के साथ रिएक्ट करेगा, आइदर इसके नतीजे में बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो वैलिड हमारे पास पाथवे होगा कि नहीं होगा। तो और जबकि अब रूट B को अगर हम देखें बेटा, तो रूट B में जो डिस्कनेक्शन हो रही है वो कार्बन नंबर 2 और ऑक्सीजन के दरमियान हो रही है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन नंबर 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, हमें पता है कि अगर विसिनिटी में कोई OH ग्रुप मौजूद हो तो वो एपॉक्साइड बन सकता है। इस तरह से इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो एक एपॉक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये OH की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल। तो बेटे ये दो पॉसिबल पाथवेज अवेलेबल थे जिसके नतीजे में हमारे पास दो टाइप के सिंथोन्स बने और हमने आगे उनके रिस्पेक्टिव जो स्टार्टिंग मटेरियल्स थे उनको भी हमने देखा। तो अब हम नेक्स्ट सिंथेसिस में देखेंगे कि इन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनेगी कौन से वाली प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा अच्छी बनती है। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी सिंथेसिस देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसमें आप देखिएगा कि जो रूट ए था, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। रूट ए में जब डिस्कनेक्शन हुई थी तो हमारे पास एक जो सिंथोन्स से रिस्पेक्टिव जो स्टार्टिंग मटेरियल बने थे, इसमें एक हमारे पास क्लोरीन बना था, कार्बन जो कार्बन कैटायन था उसके साथ क्लोरीन अटैच हुआ था और दूसरा ऑक्सीजन के साथ H लगा था। बेटे अब ये जो दो OH ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पे, तो ये कीमो सिलेक्टिविटी दे रहे हैं यहाँ पे कि सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें कि क्लोरीन किस OH के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास तो इक्वल चांसेस हैं। जब इक्वल चांसेस हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट जो है वो मिल रही है। एक वो जिसमें OH विल रिएक्ट विद क्लोरीन, OH ऑफ कार्बन नंबर 2 विल रिएक्ट विद क्लोरीन, और एक वो जिसमें OH ऑफ कार्बन नंबर 1 रिएक्ट करेगा। तो ये आपको आगे दोनों प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं बेटा। जबकि अगर हम बात करें द स्टार्टिंग मटेरियल्स ऑब्टेन्ड थ्रू द रेट्रो ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू रूट बी, तो उसमें हमारे पास ये जो एपॉक्साइड बना था, इट विल बी अटैक्ड बाय द OH ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द OH, और ऑक्सीजन जो एपॉक्साइड के ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द प्रोटोनेशन। अब आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो पाथ बी के स्टार्टिंग मटेरियल्स थे उनमें उनका जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रही है। इसका मतलब है कि पार्ट इसका जो रूट बी था दैट विल बी मोर रिलायबल, वो उस पर ज़्यादा जो है वो हमारे लिए एक वैलिड पाथवे होगा फॉर द रेट्रो एनालिसिस ऑफ द दैट कंपाउंड। अब मैंने ये जो पीछे स्लाइड आपको बेटा बताई है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट कि कैसे अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो एक वन कार्बन हैज़ OH लिंकेज एंड द अदर हैज़ CO ईथर लिंकेज। तो बेटा डिस्कनेक्शन करते वक्त डिस्कनेक्ट द मॉलिक्यूल नियर टू हेटेरोएटम as we have seen in one group CX disconnection. In this molecule, ether linkage CO should be disconnected, not the OH group, as it is the terminal group, so it is not the valid disconnection। जैसे बेटा मैंने पहले भी बताया कि हमने टर्मिनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा
फिर जब ईथर की बात आई तो ईथर में हमारे पास दो तरह के जो रूट्स थे वो अवेलेबल थे। टू डिस्कनेक्ट CO bond there are two routes A और B. As we are disconnecting one functional group with respect to the other, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एरो के ऊपर 1 2 डाई x लिखेंगे। अब दो रूट्स थे अवेलेबल हमारे पास, दो रूट्स में बेटा हमने दोनों रूट्स की डिस्कनेक्शन या रेट्रो करके देख लेनी है, उनके सिंथोन्स बना के देख लेने हैं और उनके रिएजेंट्स भी हमने बना के देख लेने हैं कि कौन कौन से रिएजेंट्स हमारे पास पॉसिबल हैं। तो जैसा कि लास्ट एग्जांपल में जो रूट ए था उसमें हमारे पास ये जो आपके पास स्ट्रक्चर सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सिंथोन्स और उनके रिस्पेक्टिव स्टार्टिंग मटेरियल्स बने थे। जबकि नेक्स्ट हम देखते हैं रूट बी में, रूट बी लीड्स टू द फॉलोइंग सिंथोन्स एंड रिएजेंट्स। अब रूट बी में हमारे पास ये वाले सिंथोन्स और रिएजेंट्स बने थे बेटा। इसमें देखिएगा कि जो सेकंड सिंथोन है इसमें OH ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है, इसके साथ कार्बन नंबर 2 पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू OH ग्रुप, इट कैन बी चेंज्ड इनटू एपॉक्साइड और ऑक्सीजन रिंग। अब एपॉक्साइड्स या ऑक्सीजन रिंग्स हमें पता है दीज आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स which are the valid starting materials for the target molecule synthesis as shown in previous scheme. अब अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में बेटा रूट ए के थ्रू जो हमने रेट्रो किया था उसमें क्लोरीन विल रिएक्ट विद आइदर ऑफ 2 OH ग्रुप्स, यानी कि क्लोरीन के पास चॉइस है कि वो किसी भी दोनों में से किसी भी OH के साथ रिएक्ट कर सकती है। जब यहाँ पे चॉइस आ गई तो इसका मतलब है हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। तो बेटा रेट्रो एनालिसिस करते वक्त आपने ये भी ख्याल करना है कि जहाँ से आप तोड़ रहे हैं उसको आपने दोबारा से सिंथेसाइज भी करना है। तो जब सिंथेसाइज करना है तो क्या वो जो जहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वो एक फेवरेबल रूट होगा सिंथेसिस करने के लिए या नहीं। तो वन प्रोडक्ट बाय रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड OH एट कार्बन नंबर 1 एंड अदर प्रोडक्ट बाय रिएक्शन विद अदर OH ग्रुप एट C2। सो हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, सो इट विल नॉट बी द वैलिड रूट टू ऑब्टेन द टारगेट मॉलिक्यूल। वाइल इन केस ऑफ रूट बी, जब हम रूट बी की बात करते हैं तो हमारे पास आपने देखा होगा बेटे सिर्फ एक ही पॉसिबल वैलिड जो मैकेनिज्म था रिएक्शन का वो अवेलेबल था, जो कि हमें दे रहा था दैट वाज लीडिंग टू ओनली सिंगल टारगेट मॉलिक्यूल। तो इस तरह से बेटे इन दिस वे द प्रेजेंस ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप अफेक्ट्स द डिस्कनेक्शन and synthesis of other functional group. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। इसमें भी बेंजीन रिंग के साथ NH ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 1 के साथ OH ग्रुप अटैच है। तो दो कार्बन्स कार्बन 1 एंड कार्बन 2 हैविंग OH एंड NH फंक्शनल ग्रुप्स। अब अगर हम बात करें ये डिस्कनेक्शन की तो बेटा 1 2 डाई X में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने OH ग्रुप डिस्कनेक्ट नहीं करना है, इसकी बजाय हमने CN बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है। अब CN बॉन्ड हमारे पास दो तरह के हैं, एक कार्बन नंबर 2 से नाइट्रोजन और एक बेंजीन का कार्बन और नाइट्रोजन NH है। तो बेटे हमने कभी भी बेंजीन के कार्बन से डिस्कनेक्शन नहीं करनी, हमने दूसरी साइड से कार्बन नंबर 2 से इसको डिस्कनेक्ट करना है। और ये जो डिस्कनेक्शन के बाद
हमारे पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जैसे कि ये वही सिचुएशन बन रही है जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखी कि OH के साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन रिंग बन जाएगा एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, जबकि NH के साथ हाइड्रोजन आके अटैच होगा और एनिलीन बनेगी। हमें पता है एनिलीन इज इजीली अवेलेबल and in the synthesis this aniline will react with this oxygen ring in the presence of a base and sodium hydrazine। तो हमारे पास इस तरह से ये NH2 जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। इसमें से एक प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ से एक प्रोटॉन निकल के ऑक्सीजन के पास जाएगा और हमारे पास हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था वो दोबारा से बन जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में अब हमारे पास 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कार्बन नंबर 1 के साथ NH है, कार्बन नंबर 2 के साथ OH है और कार्बन नंबर 2 से नेक्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन ग्रुप है। हमने चूंकि 2 कंसेक्टिव कार्बन्स या 2 कंसेक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करना है, इसमें भी सेम बेटा हमारे पास C-N डिस्कनेक्शन होगा, N इज अ हेटेरो एटम। इसी तरह से हम एरो के ऊपर 1,2 डाई X लिखेंगे और C-N बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके जो सिंथोन्स बनेंगे उसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जबकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। चूंकि इस कार्बोकैटायन के विसिनिटी में OH ग्रुप मौजूद है तो ये OH ग्रुप ऑक्सीजन रिंग बना देगा या एपॉक्साइड रिंग बना देगा। अब आप ये देखें, ये जो मैंने स्टार्टिंग मटेरियल बनाया है इसकी फिर से डिस्कनेक्शन पॉसिबल है। वो कैसे, ऑक्सीजन रिंग एक फंक्शनल ग्रुप है और उससे नेक्स्ट कार्बन नंबर 1 उसके साथ ऑक्सीजन लिंकेज मौजूद है। तो अगर हम इसकी डिस्कनेक्शन करें कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन जो कि ईथर लिंकेज में है, तो हमारे पास एक और जो है वो सिंथोन बनेगा जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन रिंग वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब इस कार्बन के साथ अगर हम क्लोरीन लगा दें तो हमारे पास स्टार्टिंग रिएजेंट बन जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो O है उसके साथ हाइड्रोजन लगाने से हमारे पास उसका पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल बन जाएगा। अब अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। स्टार्टिंग मटेरियल ये जो नेफ्थोल है हमारे पास, इफ नेफ्थोल का बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो बेस इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी, जबकि क्लोरो ऑक्सीजन रिंग अटैक होगा, इस ऑक्सीजन का अटैक होगा इस कार्बन के साथ जो कि क्लोरीन के साथ, जिसके साथ क्लोरीन अटैच है। तो अब ये इस अटैक के बाद क्लोरीन एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये एपॉक्साइड इस ऑक्सीजन के साथ ईथर लिंकेज में लग जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हमारा रिएक्शन है थ्रू विद द अमीन। ये अमीन इस ऑक्सीजन रिंग पे अटैक करेगी और दोबारा से हमारे पास बिल्कुल लास्ट जो एग्जांपल में हमने मैकेनिज्म किया था बिल्कुल वैसे OH ग्रुप और NH ग्रुप इन 1-2 पोजीशन पे एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। एक चीज का ख्याल रखना है बेटा, डिस्कनेक्शन में जो सीक्वेंस हम अडॉप्ट करेंगे यानी कि जो डिस्कनेक्ट करने का जो सीक्वेंस होगा सिंथेसिस में उसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स इस तरह से डिस्कनेक्शन में जो डिस्कनेक्शन हमने सबसे पहले की है सिंथेसिस में वो स्टेप सबसे बाद में आएगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट हियर इज अनदर एग्जांपल। बेटे इस एग्जांपल में भी सेम हमारे पास 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कार्बन नंबर 1 पे एक कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे जो है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है।
और ये हमें पहले से बात पता है कि हमने टर्मिनल ग्रुप्स नहीं तोड़ने हैं, लिहाजा हम कार्बन नंबर 2 और नाइट्रोजन का डिस्कनेक्शन करेंगे। इसके नतीजे में हमारे पास अल्फा हेलो कार्बोनाइल जो है वो फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहा है। अब अल्फा हेलो कार्बोनाइल में हम अटैच करेंगे क्लोरीन को, तो हमारे पास अल्फा हेलो कार्बोनाइल मिल जाएगा एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, जबकि दूसरी जगह हम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर देंगे, तो हमारे पास ये स्टार्टिंग रिएजेंट बन जाएगा। इसकी सिंथेसिस देखें बेटा, बहुत सिंपल सी सिंथेसिस है। जस्ट द कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स विद द रिमूवल ऑफ HCl। हमारे पास दोबारा से टारगेट मॉलिक्यूल हमें हासिल हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द 1-2 डिस्कनेक्शन। मैंने 5 एग्जाम्पल्स के जरिए आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बेटे। आप इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स स्टडी करके ढूंढ के आप डिफरेंट बुक्स में से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसको सीखने का और समझने का मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं 1,3-CX कनेक्शन की। 1,3-CX डिस्कनेक्शन में 2 फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे से 1,3 रिलेशन पे मौजूद होते हैं। इसमें भी सेम 1 फंक्शनल ग्रुप इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द अदर। अब 1,3 डिस्कनेक्शंस कब ज्यादा अच्छी पॉसिबल होती है बेटा? व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ अल्कीन कॉन्जुगेशन टू एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर वो किसी अल्कीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो हमारे पास जो है वो 1,3 डिस्कनेक्शंस ज्यादा इजीली पॉसिबल हैं। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, कोई कार्बोनाइल, कोई नाइट्रो सयानो या कोई सल्फर ऑक्सीजन वगैरह ग्रुप मौजूद होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। इसमें कार्बन नंबर 1 पे कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के साथ जो है कार्बन नंबर 3 वो सल्फर के साथ अटैच्ड है। अब हमने डिस्कनेक्शन करनी है कार्बन 1,3 डाईएक्स। इसका मतलब है कार्बन नंबर 3 से हमने ग्रुप को डिस्कनेक्ट करना है जो कि एज अ हेटेरोएटम इसके साथ अटैच है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 1। आइए देखते हैं इसकी डिस्कनेक्शन करें तो क्या कौन से सिंथोन्स हमारे पास मिलते हैं। ये स्टूडेंट्स ये सिंथोन्स आपके सामने है जिसमें सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये सल्फर बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही बिहेव कर रहा है और इसमें अगर सल्फर के साथ हम हाइड्रोजन लगा दें और कार्बोकैटाइन के साथ हम कोई गुड लिविंग ग्रुप या कोई जैसे सपोज हेलोजन लगा दें तो हमारे पास स्टार्टिंग रिएजेंट्स इस तरह से अवेलेबल हैं। अगर हम गुड लिविंग ग्रुप ना भी लगाएं जैसे मैंने ऊपर बताया है 1,3 डिस्कनेक्शंस अराइज व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ अल्कीन कॉन्जुगेशन टू एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे ये कार्बोनाइल है, सिंथोन में देखिएगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच कर दें यानी कि कोई अल्कीन अटैच कर दें तो हमारे पास 1,3 कनेक्शन के पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म ज्यादा अच्छा अवेलेबल होगा। अब अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें बेटा तो सिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप में एक बेस SH से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन द अल्कीन कार्बन, टर्मिनल अल्कीन जो है उसके टर्मिनल कार्बन पे ये अटैक करेगा और ये बॉन्ड जाएगा सेकंड कार्बन पे। अब सेकंड कार्बन जो है बेटे ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसको हम जो है वो बैलेंस करेंगे विद अ प्रोटॉन। इन एसिडिक कंडीशंस ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और हमारे पास हमारा स्टार्टिंग मटेरियल दोबारा से हमें मिल जाएगा। तो इसमें ये एक चीज याद रखनी है, मोर रिलायबल 1,3 डिस्कनेक्शंस आर दोज हैविंग नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन।
लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है रिंग के ऊपर 1 पोजीशन पे, 2 और 3 पोजीशन पे हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन मौजूद है। इसका भी अगर हम 1,3 डाईएक्स देखें बेटा तो कार्बन नंबर 3 पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसकी हमने डिस्कनेक्शन करनी है। जब हम कार्बन नंबर 3 से CN डिस्कनेक्शन करेंगे तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि एज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन एक्ट करेगा, जबकि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। बेटे अब ये देखिएगा ज़रा, रिंग के ऊपर जहाँ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पोजीशन जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है, इन दोनों के दरमियान में एक कार्बन मौजूद है, कार्बन नंबर 2। ये कार्बन नंबर 2 इस वक्त अल्फा कार्बन है और इसका हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसके प्रोटॉन को हम एब्स्ट्रैक्ट करा सकते हैं। जब यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ मिलके जो है वो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो सेकेंडरी अमीन वाला स्टार्टिंग रिएजेंट तो हमें पता है, इसके साथ हाइड्रोजन लगेगा NH और डबल बॉन्ड कोई भी ये दो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप्स हैं सपोज। अभी देखिए इसमें से NH सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो OH ग्रुप विल अटैक ऑन द अमीन, इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अटैक करेगा कार्बोनाइल जो रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड बना था, जो हमने एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इसको बनाया था बेटे, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन के ऊपर चले जाएंगे और कार्बन नंबर 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा विच विल बी बैलेंस्ड बाय अ प्रोटॉन। आफ्टर एडिशन ऑफ प्रोटॉन वी विल गेट our target molecule. This was about the disconnection and synthesis of this molecule. Let us consider one more example. इस एग्जाम्पल में भी आप डिस्कनेक्शन में देखिए बेटा, दो रिंग्स हैं, कार्बन नंबर 1 में कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 और 3 कार्बन is attached with the phenyl group and with the piperidine group स्ट्रक्चर। इसमें भी बेटा कार्बन नंबर 3 से पिपरिडीन के N की डिस्कनेक्शन होगी। इस N की डिस्कनेक्शन CN डिस्कनेक्शन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा विच विल बी बैलेंस्ड बाय हाइड्रोजन, और दूसरा सिंथोन फिनाइल के साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को आपको ये जो हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करें तो हमारे पास रिंग और फिनाइल के दरमियान जो कार्बन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बेटा ये सिंथोन्स थे और इनके आगे इनके पॉसिबल स्टार्टिंग रिएजेंट्स मैंने लिखे हैं जो कि एज अ हेल्प करेंगे टू सिंथेसाइज दिस टारगेट मॉलिक्यूल। आइए अब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। सिंथेसिस में पिपरिडीन का जो नाइट्रोजन है इससे बेस इस पे अटैक करेगी और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से नाइट्रोजन विल अटैक ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ द अदर जो हमारा रिएजेंट है उसके ऊपर, और रिंग के साथ जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि एसिडिक कंडीशन में प्रोटॉन के साथ इसको बैलेंस कर लिया जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये एक दोबारा से टारगेट मॉलिक्यूल अचीव हो गया है। बेटे आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है जिससे हमें ये मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म या इनकी जो डिस्कनेक्शन है वो और अच्छे से क्लियर हो सकती है। क्लियर हो गई होंगी ये एग्जांपल्स बेटा। अब आप स्टूडेंट्स, दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू टू prepare this lecture.
you can also find out some other examples from the different books and try to disconnect these molecules by keeping in mind the possible mechanistic routes along with the synthesis of these compounds. You have to synthesize these compounds again. So you can also use the concept of protecting groups, and you can use the concept of functional group interconversion to disconnect or to synthesize these molecules. These are the recommended books. The Disconnection Approach by Stuart Warren. This is a very good book on the disconnection and retrosynthesis, while The Organic Chemistry by Jonathan Claydon and Greaves. You can consult these two books. If you find any difficulty to understand these topics, you can put a question in the classroom so that we can discuss in the class. Thank you so much, students.